All right. Acha, in last couple of classes, we were discussing about the transfer of thermal energy, right? And the last method, the last way through which the transfer of thermal energy takes place, we discussed was radiation, right? और हमने रेडिएशन के अंदर ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं एंड thermal radiation has all the properties of electromagnetic radiation or electromagnetic waves. Okay, and we know that they travel with the speed of light. Okay, or the thermal radiation mostly they are infrared radiation, right? So these were the couple of things that we discussed in the last class. And all objects emit the radiations, right? If they are hot, they will emit the radiation. Okay. Acha, remember whenever the heat falls, or I should say that when radiations fall on any object, so they must be partly reflected. ठीक है, कुछ तो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं and there are transmitted as well. ठीक है, I can say that they will be partly transmitted and partly absorbed. ठीक है, तो reflected is, you know, is something when you throw the ball, it hits the wall and then it comes back. This is how the reflection takes place, right? And when we say that absorb, तो absorb में क्या हुआ कि एक चीज थी वो रिसीव हो गई, ठीक है, और उसके पास ही है, it is there inside that boundary. And then when we say emit, तो emit का concept ये होता है कि the radiations that come out from the body that were already absorbed, जो absorb हुई हुई थी, ठीक है, अब वो क्या हो रही है, emit हो रही है. जस्ट लाइक आपके पास एक फोम है, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, और जब आप उसको प्रेस करेंगे देन इट विल गिव ऑफ द वाटर, राइट? So we have already discussed these all things, and I also spoke about the electromagnetic waves. क्या होती हैं? आपकी एक इलेक्ट्रिक वेव होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं. इनके मर्जिंग से, इनके कॉम्बिनेशन से जो आपकी वेव बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, राइट? और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? व्हाट इज द वैल्यू? 3 × 10⁻⁻⁴ ओके, 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यस, ऑल वेव्स कैरी एनर्जी. याद रखिएगा, एनर्जी हमेशा वेव्स के अंदर एनर्जी होती है. ठीक है. अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, जिसमें से हम इंफ्रारेड रेडिएशन को लेते हैं और वही थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस करवा रही होती है. इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू होता है, एंड इंफ्रारेड रेडिएशन इज द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, एंड ये मैंने आपको ये भी डिस्कस कर लिया था दैट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे कम फ्रॉम द मैटर. ठीक है, एंड वट एवर द टेम्परेचर, इफ द मैटर हैज सम पर्टिकुलर टेम्परेचर that is greater than 0 डिग्री सेल्सियस, it must give off the electromagnetic radiation. Okay, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हीट कर रहे हैं, उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी जो आपकी थर्मल रेडिएशन है वो दे सकता है. ठीक है. अच्छा, we also discussed that the thermal radiations travel in all directions, right? And we receive the thermal energy from sun in the form of infrared radiation, right? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. अच्छा, what are the factors that can increase or decrease the thermal radiation? So the very first thing that we discussed was temperature.
अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ गोइंग टू रेडिएट फास्टर, and if the temperature of the body is higher or getting increased, then thermal radiation would be increased. Okay. Then we also discuss the surface area. If we have greater surface area and the body has heat in it, then what is going to happen? It will, the greater surface area or the greater body means the body which has a greater surface area will allow the thermal radiations to escape out with a higher rate. Okay. अच्छा, फिर इसके बाद हमने कलर और सरफेस कलर की बात की थी, ठीक है, और इसके बाद फिर टेक्सचर भी आ गया था. We also discussed that the black or dull objects absorb more thermal energy, right? And emit the thermal energy more as well. So we learned this concept that good absorbers are always good emitters. जो जितना absorb करेगा उतना ही best emitter भी होगा. तो इसलिए ब्लैक वाले जो हैं वो क्या होंगे, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब भी करते हैं ज़्यादा और फिर एमिट भी ज़्यादा ही करते हैं. ओके. देन वी कम टू टेक्सचर. और हम टेक्सचर में वी नो दैट रफ टेक्सचर बॉडीज विल गिव ऑफ ग्रेटर थर्मल एनर्जी या रेडिएशन. ओके. अच्छा, हाउ कैन वी रिड्यूस द रेडिएशंस? एज वी ऑलरेडी नो के रेडिएशंस जो हैं, जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं या आपका रेडिएशन का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ इट इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी, आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, राइट? तो कोई पार्टिकल्स की नीड नहीं है, दे डोंट डिपेंड ऑन पार्टिकल्स. सो if we create a vacuum as we did in the conduction and convection, how to reduce convection or conduction, we can create vacuum. But radiations cannot be stopped or reduced unless you follow the steps or you follow the factors that can affect the radiations. Okay. And they are color, texture, surface area and temperature. इन चार चीज़ों से खेलोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तब जाके ही तुम्हारा रेडिएशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है. ओके. So the very first thing that you have to keep in your mind that black bodies or dull are always good absorbers and good emitters. Number one. Number two is white color or bright color are always bad absorbers of radiation. That means अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये चाहते हैं कि किसी ऐसे एरियाज के अंदर, ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, देन द बॉडी द बिल्डिंग्स मस्ट बी पेंटेड वाइट. ठीक है, उनका वाइट पे पेंट होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो फिर वाइट कलर, दे आर बैड अब्जॉर्बर्स, राइट? तो अगर हाई टेम्परेचर है तो सन की तरफ से जो जितने भी आपकी थर्मल रेडिएशंस फॉल कर रही हैं बिल्डिंग्स पर, so if they are of white color they are going to reflect. Okay. So we should not apply the dark colors on the buildings, otherwise more heat will be absorbed. Okay. Acha, the black one will absorb more thermal energy and becomes hot quicker and sooner. Okay. ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, द ब्राइट वन विल एब्जॉर्ब. तो आप हाउ कैन यू रिड्यूस द radiations? Yes, beta. How can you reduce the radiation, or how can you reduce the radiations that are coming out from the body? What what can we do in order to stop or in order to reduce the radiation that are coming from the body? वो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ है, क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, उस बॉडी का कलर आप क्या कर दें? उस बॉडी का जो कलर है वो वाइट कर दें. ओके. क्लियर? अच्छा, एक बॉडी ऑलरेडी हॉट हुई हुई है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उस बॉडी में से जल्दी से हीट बाहर निकल आए एंड नो मोर हीट शुड बी एंटर्ड द बॉडी. तो व्हाट वी कैन डू इज, हमें वो चीज़ बाहर निकालनी है, दैट देन वी हैव टू अप्लाई अ ब्लैक कलर ताकि वो इमिट कर जाए. ठीक है. और वो इमिट तो आप कर जाए, लेकिन द बॉडी शुड नॉट बी प्लेस अंडर द सनलाइट. ठीक है, अब वो सनलाइट के अंदर नहीं रखी होनी चाहिए. इज इट क्लियर? ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ वाइट कलर ऑन इट so that it will not absorb the thermal radiation. Okay.
आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर, इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर सो आई कैन रिपीट। Alright, the bright one will absorb less thermal energy, as I already discussed in the previous lessons. So it reflects, and it is always bright color. Bright one is always a better reflector. Okay, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। शाइनी और स्मूथ वगैरह का अगर हम एक वैक्यूम फ्लास्क की एग्जांपल ले लें, देन वी कैन कवर ऑल दीज थिंग्स इन दैट एग्जांपल। ठीक है, अब आपने वैक्यूम फ्लास्क देखा होगा, द थ्री प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस, दैट हीट लॉस कैसा हो रही होती है। तो बेटा हीट लॉस को हमें रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कंडक्शन के थ्रू हीट जो लॉस हो रही है वो ना हो। अच्छा, इफ वी रिकॉल द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन इन सॉलिड्स, राइट। ठीक है, एंड इट इफेक्टिवली टेक्स प्लेस इन मेटल्स, राइट। नॉन मेटल्स में भी होती है, लेकिन इफेक्टिवली किस में होती है, फास्टर किस में होती है, मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। ओके, तो अगर हम वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दें तो क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स, अच्छा वहाँ पे पार्टिकल्स अगर होंगे कंडक्शन भी होगी। दूसरी बात ये कि वैक्यूम, सॉरी वैक्यूम से पहले मैं एक बात कर दूं, कंडक्शन को हम स्टॉप करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वी शुड अप्लाई इंसुलेटर ऑन इट। ओके, अगर हम इंसुलेटिंग कर देंगे, इंसुलेट कर देंगे उसको, ठीक है, कोई इंसुलेटर या नॉन मेटल अगर हम उसके साथ स्टिक कर देंगे, दैट विल रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ओके, क्लियर। अच्छा, रिमेंबर, उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन की। एक और तरीके से भी हम कंडक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वैक्यूम। तो आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास दैट दिस थिंग यू कैन सी, यहाँ पे मैंने मार्क किया था कि ये एक वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है हमने, यहाँ पे इस जगह वैक्यूम क्रिएट किया, राइट। सो दिस वैक्यूम एक्चुअली प्रिवेंट्स द हीट लॉस, ओके, from the flask in the form of the conduction and convection. Okay, now convection की जब हम बात करते हैं तो आपके हॉट पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे आर लेस डेंस, और लेस डेंस की वजह से वो क्या करते हैं, वो राइज करने लगते हैं। ठीक है, और राइज करने की वजह से हमने वी हैव टू पुट अ लिड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, लिड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बेटा, लिड, राइट, कॉर्क या प्लास्टिक। एंड द लिड और कॉर्क शुड बी, और अ स्टॉपर शुड बी ऑफ प्लास्टिक और एनी अदर इंसुलेटर, क्लियर, ताकि वो हीट को कंडक्शन के थ्रू पास ना कर दे। क्लियर, वट एवर द हॉट पार्टिकल्स दैट कैन स्टिक on the cork, they can be, you know, they can transmit the energy, thermal energy, ठीक है, through conduction. So in order to prevent that process of conduction, we again have to use a plastic or any insulator here. Okay, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो एक बात ये क्लियर हो गई आप लोगों को कि कंडक्शन यूज करने, स्टॉप करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू अप्लाई any insulating material. Okay, number one. Number two, we can create a vacuum that will also reduce the process of conduction. But mainly it is mainly stopped by using insulating material. Number one. Number two, convection को कैसे stop करोगे? We have to put a lid or a cover and or a stopper or cork, ठीक है, that must be made up of plastic or any insulating material. Okay, ठीक है, तो कोई कैप है, कोई कवर है, कोई लिड है, ठीक है, हम वो यूज कर सकते हैं। दैट विल रिड्यूस द थर्मल एनर्जी लॉस वाया कन्वेक्शन। ठीक है, वी डिस्कस दिस थिंग इन द लास्ट क्लास एज वेल। अच्छा, हाउ आर यू गोइंग टू, अच्छा एक और चीज भी है, हम अगर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो अगेन वैक्यूम विल आल्सो रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, राइट। हाउ एवर दिस this is because the convection, in convection the medium transfers, right। medium transfers का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई कंटेनर है, वहां पे कोई पार्टिकल्स हैं, जब उनको हम हीट कर रहे हैं तो these particles become less dense as they are hotter, so they become less dense and they will rise, वो राइज करेंगे और राइज होके आपके टॉप ऑफ द सरफेस आ जाएंगे। ओके, अच्छा कुछ पार्टिकल्स आपके यहाँ तक पहुंचेंगे ना, जब राइट और लेफ्ट की तरफ भी कुछ कन्वेक्शन करंट की वजह से राइट लेफ्ट भी हो रहे होंगे,
तो वो बॉडी के थ्रू भी कुछ स्टिक स्टिक हो जाएंगे। तो अगर हम वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो दिस इज हाउ द कन्वेक्शन ऑल्सो गेट्स स्टॉप्ड। बट अगेन आई वुड से दैट द मेन स्टेप that that we have to use in order to reduce the heat loss by convection must be done via lid। ओके, कोई ना कोई लिड हमें यूज करनी पड़ती है, ये जरूरी है। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन को स्टॉप करने के लिए एक जगह तो हम ये कह रहे हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर लो, और दूसरे कन्वेक्शन के लिए हम कह रहे हैं लिड यूज कर लो। ओके, लेकिन दोनों के लिए एक कॉमन बात ये भी है कि अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, दैट विल आल्सो हेल्प रिड्यूसिंग द हीट लॉस थ्रू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। बट मेन आपका पॉइंट होना ज़रूरी है, कंडक्शन को स्टॉप करने के लिए आपने इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करना है, कन्वेक्शन को स्टॉप करने के लिए आपने लिड या कवर या कोई कॉर्क यूज़ करना है। ओके, और टॉप पे यूज़ करना है। ठीक है, उसके टॉप एरिया पे यूज़ करना है, बिकॉज द हॉट पार्टिकल्स विल रीच द टॉप एरिया। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, हाउ आर यू गोइंग टू रिड्यूस द हीट लॉस बाय रेडिएशन। जी बेटा, रेडिएशन को कैसे स्टॉप करेंगे आप, या रिड्यूस कैसे करेंगे? वी वांट के अब बाहर की एनर्जी अंदर नहीं जानी चाहिए। देन बाहर की जो थर्मल एनर्जी है, इट शुड नॉट एंटर द फ्लास्क। सो वी विल डेफिनेटली बी यूजिंग अ ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट। ओके, हम फ्लास्क का जो कलर है वो सिल्वर रखेंगे, या कोई सिल्वर वाइट, या कोई और ब्राइट कलर रखेंगे। इट शुड नॉट बी मेड अप ऑफ अ ब्लैक कलर और अ डार्क कलर। ओके, नंबर वन। नंबर टू, शाइनी सरफेस जितना रखेंगे उतना ज़्यादा गुड रिफ्लेक्टर बन जाएगा ये, तो अंदर की हीट को अपने पास स्टोर को रखेगा। ठीक है, लेकिन जो बाहर वाले जो एनर्जी एंटर होने की बात करेंगे, ठीक है, तो वो एंटर नहीं हो सकेगी। वाई? बिकॉज द सरफेस इज ऑफ शाइनी, राइट? तो शाइनी सरफेस विल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन that कैन एंटर द फ्लास्क। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लास्क का जो वैक्यूम फ्लास्क का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, whatever the thing that is kept inside the flask must be must be maintained, ठीक है, at a specific temperature। वो चीज़ का टेम्परेचर जो है वो एक मेंटेन होना चाहिए। ओके, राइट। अच्छा जी, ग्राफ ऑफ कूलिंग कर्व। अब हम कूलिंग कर्व से पहले हम हीटिंग कर्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दो चीज़ें आप देख रहे हैं। नंबर वन, मैं राइट वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, हीटिंग कर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक्स एक्सिस पे देखें तो आपके पास टाइम आ रहा है, और वाई एक्सिस पे आप देखें तो टेम्परेचर आ रहा है। दैट मीन्स दैट यू गिव हीट, ओके, एंड देन वी ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो कंसिडरिंग दैट वी हैव वन सॉलिड, हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, और वो टाइम मान लो वो टाइम मैं वैसे लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ उसको 1 PM पे था ये, हमारा टाइम जो है ना 1 PM था जब हमारे पास एक सॉलिड था, राइट? देन वी स्टार्टेड गिविंग द हीट टू दैट ऑब्जेक्ट, और उसका क्या होगा, द देयर विल बी द राइज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, और राइज होते होते, ठीक है, क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे टेम्परेचर अब राइज नहीं हो रहा। द टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग, इज नॉट इंक्रीजिंग। कैन एनीवन टेल मी दैट what is happening? Have we stopped giving the heat, or something else is taking place? There's something else is taking place. So that process is the melting. Okay, still we are giving the heat, we are supplying the heat to the object, right? उसका इनिशियली तो पहले टेम्परेचर बढ़ गया, पहले टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू से, दैट द हीट इज यूटिलाइज्ड चेंजिंग द स्टेट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके हीटिंग कर्व हो या कूलिंग कर्व हो, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा स्टेट चेंज बता रही होती है। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल लाइन
Right. So I was saying that whenever the horizontal line in heating curve or cooling curve, if we find any horizontal line, so we can say there is a there is a state change. Okay, there is a state change. Okay, so we can say कि यहाँ पे solid था यहाँ तक, ठीक है, solid गर्म हो चुका है. Now one temperature is reached, ठीक है. So this point, at this point one temperature is there और यहाँ पे state change हो रही है. तो यहाँ पर जितनी आप हीट दे रहे हो वो हीट कहाँ जा रही है जी बेटा? अब जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ जा रही है? टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा. सो व्हाट विल यू से? आर यू स्टिल गिविंग द हीट और नॉट? यस, वी आर गिविंग द हीट. तो वो हीट से टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा. अब क्या हो रहा है इस पॉइंट पे? क्या हो रहा है फिर? मेल्टिंग हो रही है बेटा. ओके, दैट मीन्स कि आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको हम क्या कर रहे हैं? ओवरकम कर रहे हैं. एंड द पार्टिकल्स आर गेनिंग एनर्जी. वो एनर्जी कहाँ से आ रही है पार्टिकल्स के पास बेटा? हीट देकर आ रही है. ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम आया हमारे पास, मान लो, वो 1:30 PM था. मान लो ये बात कि 1:30 PM था और वहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली लिक्विड बन चुका था. ओके, नाउ स्टिल वी आर गिविंग हीट. ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया वापस से फिर दोबारा. ओके, वी कैन से हियर, over here the temperature is rising now. Temperature is rising. ओके, तो टेम्परेचर जहां जहां राइज हो रहा है मैंने वहां पे आपका ये येलो कलर कर दिया. ओके, हाईलाइट कर दिया. जहां जहां टेम्परेचर राइज हो रहा है वो मैंने ऐसे कर दिया. जहां हमारी स्टेट चेंज हो रही है ना, जहां हमारी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, वहां मैंने इसको ब्लू कर दिया, जहां स्टेट चेंज हो रही है. ओके, इज दिस क्लियर ना? अब स्टेट हमारी दो जगह चेंज हो रही है. एक जगह सॉलिड से लिक्विड, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. हाउ इज इट डन? How is it done? Since we are supplying heat to the solid substance, so it converts into liquid. Okay. Now this point where the liquid is there, where still we are supplying heat, we are giving heat to the substance. तो अब क्या होगा बेटा? There will be the rise of temperature. There will be the rise of temperature. As you can see, y axis के अंदर आपका जो vertical axis है उसके अंदर changes आ रही है. ठीक है, जितना टाइम आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर भी आगे बढ़ रहा है. राइट, नाउ वी रीच टू दिस पॉइंट. हम इस पॉइंट पे पहुंच गए. जब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, वी कैन ऑब्जर्व द टेम्परेचर स्टार्ट्स, टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग. ऐसा ही है. टेम्परेचर क्या हो गया? अब रुक गया. इज दिस क्लियर? टेम्परेचर रुक गया और अब हम ये देख रहे हैं कि अब वापस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. As I have told you that whenever you observe any horizontal line in a heating curve or cooling curve, you must be saying that there's a state change. Okay. So now this time since we have liquid, right? हमारे पास यहाँ liquid था. अब वो liquid से gas में conversion का नाम अब आ जाएगा आपका boiling. Okay. Now gas is there और अब जो rise हो रहा है, ठीक है, स्टिल हम हीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हम हीट दे रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं इसको. ओके, तो नाउ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजिंग. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस एज वी आर गिविंग द हीट. ओके, नाउ आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि हीटिंग कर्व में क्या हो रहा होता है. हम हीट कर रहे होते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गिव द हीट टू द ऑब्जेक्ट. इनिशियली वी हैड सॉलिड and then at the last we get gas. I hope this is very much clear to everyone, right? Any confusion? अभी तक कोई confusion है प्लीज बता दें ताकि मैं कोई रिपीट कर दूं कोई बात है. No. ऑलराइट, ओके, सो ग्राफ ऑफ कूलिंग कर्व की बात कर लेते हैं. यू कैन कंपेयर विद द वर्ड. हमारे पास हीटिंग कर्व में क्या हो रहा होता है? टेम्परेचर राइज हो रहा होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, हीट कर रहे हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आपके हायर टेम्परेचर से हीटिंग कर्व के अंदर आप लो टेम्परेचर से कहाँ जा रहे होते हो? लो टेम्परेचर से कहाँ जा रहे होते हो? हायर टेम्परेचर पे जा रहे होते हो. ओके, राइट. और आप कूलिंग कर्व में क्या हो रहा होता है? हाई टेम्परेचर से कहाँ आ रहे होते हो? Low temperature. हाँ, लो टेम्परेचर पे आ रहे होते हो. राइट, अब जब आप लो टेम्परेचर पे आ रहे हो दैट मीन्स कि आपने उसकी हीट बाहर निकालनी है. ओके, तो इनिशियली यू हैड गैस,
ठीक है। अब आप यहाँ पे और से देखो, उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। दैट मीन्स कि ये हीट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। हीट लॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, हीट लॉस कर रहा है। ओके, अच्छा जी। क्या यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है क्योंकि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है? क्या यहाँ पे हीट लॉस नहीं हो रहा क्या? हीट लॉस हो रहा है। लेकिन अगेन आई विल से दैट देयर दिस लाइन विल इंडिकेट देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। ओके, और यहाँ पर फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है। यहाँ फोर्स ऑफ हीटिंग कर्व के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई थी। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में आप क्या कहोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई है। इज इज क्लियर? ठीक है। when we reach to this point it becomes a liquid again, it starts giving off heat। वो तो पहले भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अब आपका हीट और ज्यादा क्या होगी, रिलीज होना शुरू हो जाएगी। एंड देन इट बिकम्स सॉलिड। क्लियर बेटा? यहाँ पे सॉलिड बनेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम होता जा रहा था, फिर सॉलिड बन गया। अब हीट बाहर निकलेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगी एंड द पार्टिकल्स बिकम टाइटली पैक्ड। ओके, पार्टिकल्स यहाँ पे आके टाइटली पैक हो जाएंगे एंड दे विल हैव द वेरी मिनिमम एनर्जी। ओके, उनके पास क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स के पास सॉलिड के अंदर क्या होगा, मिनिमम एनर्जी होगी, लीस्ट एनर्जी होगी। इज इज क्लियर? लीस्ट एनर्जी होगी। बताइए हाईएस्ट एनर्जी किन पार्टिकल्स के पास होती है, गैस या लिक्विड या, चलो गैस और सॉलिड में बता दो, गैस या सॉलिड? गैस। गैस के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है पार्टिकल्स के अंदर। ओके, दैट्स व्हाई दे मूव रैंडमली। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इज इज क्लियर? ठीक है। देन आफ्टर दैट फ्रीज होने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर देखो, ये वाला पूरा प्रोसेस लिक्विड से सॉलिड जाना ये फ्रीजिंग है। ठीक है, एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस प्रोसेस, राइट? और ये जो पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये जो जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होती है हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ओके, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहेंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उस वक्त कहेंगे जब वो आपकी अ, अगर हम हीटिंग कर्व में होते। ओके, अच्छा जी, ये बात आगे सॉलिड यहाँ पे आ गया और उसके बाद फिर दोबारा इसका हीट बाहर निकल रही है और इसका फिर क्या होगा, टेम्परेचर और कम हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये कोल्ड होगा इस पॉइंट पे जाकर। क्लियर? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? जी। याद रखना, सरफेस टेम्परेचर का काम होता है इसके अंदर। ठीक है, कि अगर हम ये कहेंगे ना, इफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हायर देन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, राइट? अगर सरफेस टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा सराउंडिंग से, सही है? मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका खुद का टेम्परेचर जो है ना, उसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर लेट से इसको मैं θ1 कह देता हूँ, इसको मैं θ2 कह देता हूँ। ओके, सराउंडिंग टेम्परेचर हम इसको कह देते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ डू यू थिंक दैट द ऑब्जेक्ट हैज मोर टेम्परेचर और हैज ग्रेटर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग? यस। ऐसे ही है। तो वी हैव लर्नड दिस कॉन्सेप्ट इन द टॉपिक ऑफ मूविंग फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम 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 हॉट टू कोल्ड, कि हमेशा हीट ट्रांसफर जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ऐसा ही है। तो बेटा हॉटर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये बॉक्स है। ठीक है, और हीट हमेशा कहाँ जाएगी, कूलर एंड की तरफ जाएगी। इज दिस क्लियर? यस। ऐसा ही है ना? और ये कब तक होता है, जब तक टेम्परेचर दोनों जब तक टेम्परेचर दोनों बराबर नहीं हो जाते। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, जब तक टेम्परेचर दोनों बराबर नहीं हो जाते ये हीट लॉस होता रहेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, सो रिमेंबर इट इमिट्स रेडिएशन एट अ फास्टर रेट देन इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है,
So as a result, it cools until the two rates become equal or two temperatures become equal. ठीक है, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर रीच हो जाता है. इस टेम्परेचर को, जहाँ पे दोनों टेम्परेचर बराबर होते हैं, बराबर हो जाते हैं, वी कॉल इट थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट डू वी कॉल इट बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम. राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अच्छा जी. Yes. कुछ मैं यूजेस ऑफ कंडक्टर्स वगैरह की आई थिंक बात कर चुका हूँ. इफेक्ट ऑफ इंसुलेशन भी बता चुका हूँ मैं. ठीक है. और एक एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस भी होती है. इंफ्रारेड आपके थर्मोमीटर्स के अंदर होता है. ठीक है. जब बॉडी आपकी इमिट कर रही होती है रेडिएशंस, तो आपका जो थर्मोमीटर होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. ओके. ठीक है. राइट. एनी कंफ्यूजन बेटा? No. So we will start our new class of chemistry as well. नहीं पढ़ेंगे सर. Hmm.